Hello everyone, welcome to this video. So in this video we are going to learn first chapter of our module, that is Introduction to Financial Management. This is the basic concept of finance. If you are learning the financial management, you should have the basic knowledge of this chapter. Otherwise you will not be able to understand the many concepts of the financial management, whatever you do the practical sums. So it is very important to know the concept of financial management, then start study of financial management. How we can manage our finance? Simply the term financial management. First of all, we have to understand the meaning of management. Management means what? To manage something. Before management, there is term financial. Financial means we have to means finance means money. Simply, now the meaning of the term is financial management, means we can say that to manage the finance means to management of money. Correct? So the term financial management expressed as what? Management of money or money related things. So finance is called, here is given as finance is called science of money, means simply we are studying about money na, the science of money. So we will do one definition. So in this module we are going to learn not only about finance, we are going to learn business finance, how we can manage the finance of business, not our personal finance. So keep in mind we are learning through view of business prospectus, not our self prospectus. Okay, so let's start. So we'll do one or two definitions. Correct? Business finance, here is a Partha and Vodka definitions. Business finance deals with primarily with raising, administrating and distributing of funds by privately owned business units operating in non-financial field of industry. Means वह ऐसे सारी जगहों से पैसे रेज करता है और ऐसी जगहों पे पैसे इन्वेस्ट करता है जहाँ से उसको प्रॉफिट हो, या तो वो नॉन फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी हो सकती है, बट आर मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट. Simply, if we are getting profit, we will invest in that money. We have to understand one important definition. Wait. Yes, this is the very important definition according to one Horn. Sorry. Do this single definition will cover all the definition. Okay. So what is the definition of Van Horn? Financial management is concerned with acquisition, financing and management of assets and some overall goal in mind. Means what is financial management? So financial management is nothing but if I am purchasing the assets, what will be what benefit I will get? Who should I be finance? Means our money invest in which company? In management of assets means suppose I am purchasing that assets, for how many years it will beneficial for me and all. तो ये सारी चीज़ें रख के जो हम करते हैं ना, ये हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मैंने क्या बोला? टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेट टू मनी आर फाइनेंस, बट हियर वी आर लर्निंग बिजनेस prospectus, so we have to learn how we can manage the finance of business and how we can take decision on that. So we have to study on that. So this definition is comparatively important to, because it covers all the above things said in the definitions. Okay, so from the above definition, two aspects of financial management are quite apparent, means similar थे. क्या कहते हैं? Procurement of fund एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. मीन्स हमें अच्छे से पैसा लगाना है किस फंड में और हमें उससे क्या इफेक्टिव उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बोल सकते हैं कि हमें करना है. ठीक है, अभी हम पढ़ते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों पढ़ते हैं. तो सबसे पहले जैसे आप अभी आप अपना माइंड लगाओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हो. तो सबसे पहले आपने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको मैनेज करना है ना. करेक्ट, मैनेज करना है मीन्स आपको पहला क्या हो जाएगा, आपको कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, क्यों करने हैं, कब करने हैं, वो सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए. तो ये आपको इसमें बताता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके दो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं.
द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इतने दो है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जब बात करते हैं हम, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? आपने कहीं पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स सपोज आपको प्रॉफिट अर्न करना है, तो आपने सपोज मार्केट में इन्वेस्ट किया, मार्केट में कुछ शेयर्स परचेस कर लिए, ओके। तो जो आपने उसमें कुछ किया नहीं है, आपने पैसे लगाए हैं, मार्केट का रेट बढ़ गया है, आपको उतने का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बट आप जब आप खुद का बिजनेस ओपन करते हो, तो अगर आप उसमें आपका जो बिजनेस का कैपिटल है वो कैपिटल बढ़ गया, नई टर्नओवर बढ़ गया, तो आपने खुद ने मेहनत किया ना। अब खुद से जो मेहनत किया वो क्या हो जाएगा? आपका वेल्थ था, जो कैपिटल था, आपका वेल्थ था, वो मैक्सिमाइज होते गया। सो आपने क्या किया? वेल्थ मैक्सिमाइज किया, मीन्स आपने खुद के असेट्स को, खुद के बिजनेस को एक्सपांड किया, तो उसे क्या बोलेंगे? वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। बट आप किसी और के कंपनी में, किसी और के बिजनेस में पैसे लगा के मैक्सिमाइज कर रहे हो, तो क्या होता है? उसे बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन ऑफ लॉस, अगर आपको लॉस होता है किसी केस में तो, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट। देख लेते एक बार क्या बोला है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द इकोनॉमिक थ्योरी, द बिहेवियर ऑफ द फर्म। भी किसका? फर्म। हमें अभी भी फर्म के प्रोस्पेक्टस से पढ़ रहे हैं। द बिहेवियर ऑफ फर्म is analyzed using the profit maximization. It implies the firm either procure maximum output for given amount of inputs or uses minimum input for preceding its given output. So profit is concerned when the minimum driving force of the business. All aspect of business in such revenue maximized and costs are minimized. Means आपको क्या करना होगा? कॉस्ट को कम करना होगा और रेवेन्यू को ज़्यादा करना होगा, ठीक है। देखो, रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज्ड एंड कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट। मीन्स आप कितना कम चीज़ें का प्राइस कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप प्रॉफिट मार्जिन कितना रख रहे हो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे टर्नओवर के चलते जो प्रॉफिट होता है वो हम उसे क्या बोलेंगे? मीन्स सपोज बाइंग एंड सेलिंग प्राइस और हमारे कॉस्ट में जो वो डिफरेंस हो रहा है और हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस हो रहा है ना, वो अपना क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब हमारा बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। द अर्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नाउ रिप्लेस्ड बाई वैल्यू और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सिंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लिमिटेड वन। मीन्स हमें वो सेलिंग प्राइस और अपना कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस मिलेगा, बट हमें यहाँ पे क्या मिलता है? लिमिटेड वन। इट कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज करना क्या हो गया? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल हो चुका है। मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू फॉर्म कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें आपको दो फॉर्मूला दिया हुआ है। आप फॉर्मूला देखो क्या दिया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। एक तो आप खुद का लगा रहे हो बिजनेस में, और आपका बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो बिजनेस का ग्रोथ करने के लिए आपको किसी बाहर वाले का भी पैसा चाहिए, तो उससे हमें डेट भी लेना पड़ेगा, तो ये डेट का हो गया। तो मैंने जितना पैसा लगाया और मार्केट से जितना पैसा लिया, दोनों को मिला के मेरा क्या मिल जाएगा? मेरा करंट मार्केट वैल्यू कितना है, ठीक है। इतना समझा आपको? तो ये था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये फॉर्मूला आपको सेम आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ने मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको अब स्कोप क्या क्या है एंड फंक्शंस क्या क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और क्या क्या फील्ड में हम बहुत सारे सपोज क्या क्या कर सकते हैं, क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्या हमारे माइंड में वो टूल्स आ सकते हैं, क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका स्कोप दिया यहाँ पे, स्कोप ऑफ एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ मैनेजिंग फाइनेंसिंग रिसोर्सेज इन द मोस्ट ऑप्टिमल मैनर। मीन्स मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हैं उस फंड का, उस मनी का। तो हमें क्या सीखना है? इसमें सीखना है। तो सबसे पहले है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। हमें 3 डिसीजन लेने हैं। अब 3 डिसीजन में हमें क्या लेना है? पहला, मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ फॉर्म इंक्लूड 2 मेन एस्पेक्ट, वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू मच इन टू इन्वेस्ट। मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले मन में क्या आया? कहाँ पे करना चाहिए, एंड हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे करना चाहिए, किसी ब्रोकर के थ्रू करना चाहिए या खुद डायरेक्टली करना चाहिए, यह हमारे ऊपर होता है और हमें पता करना होता है। दिस मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ अ फर्म
The two basic issues involved in investment decision. Evaluation of alternative investment avenues. तो मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और एवेन्यूज क्या होते हैं, ठीक है. मॉनिटरिंग द एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेलेक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मीन्स आपको कुछ मॉनिटर करना होता है, कुछ इम्प्लीमेंट करना होता है कि हाँ मैंने इतना प्रॉफिट किया तो मुझे इसमें इतना इन्वेस्ट किया तो मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है. तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, तो हमें ये सेलेक्ट करना है कि हमें किससे ज़्यादा अपने को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है. फिर तो ये था हमारा आपका डिसीजन में क्या था, कब कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है. जिससे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो हम उस ऑप्शंस में से हमें कोई ऑप्शन, जितने भी ऑप्शंस है उसमें से हम कोई मॉनिटर करेंगे और उसमें हम सेलेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन. तो फर्स्ट ऑप्शन था आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन. दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स हमारे पास पैसे की कमी है, हमें किसी से फाइनेंस लेना है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस डिसीजन इज शुड बी फाइंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स हमें खुद का पैसा भी यूज़ करना है और बाहर का पैसा भी यूज़ करना है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ डेट. इक्विटी वेयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल मिनिमम मीन्स मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम पड़ रहा है एंड रिटर्न विल बी मैक्सिमम. सपोज मैं 10 रुपये लोन पे भी ले रहा हूँ तो मुझे 15 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, मीन्स आई एम गेटिंग 5% एक्स्ट्रा. Suppose I am paying 10%, then also I am getting 5%, and this is the concept of financing decision. So from where I have to take that amount and where I have to invest, this decision is known as financing decision. Means I am utilizing optimum of that fund. There are mainly two sources of रेजिंग फंड्स. या तो मैं इंटरनल सोर्स कर सकता हूँ या तो मैं एक्सटर्नल कर सकता हूँ. इंटरनल सोर्स में कौन कौन हो सकते हैं ऑफ द फर्म, जैसे शेयर कैपिटल्स हो सकते हैं. और एक्सटर्नल फंड में क्या हो सकते हैं, ओन फंड यहाँ पे आप किसी बाहर वाले से लोन ले सकते हो, लोन फ्रॉम बैंक्स, ठीक है. दिस इज बिकॉज बोरोड फंड एंश्योर अ फिक्स्ड पेमेंट commitment like interest, but the own fund equity do not include any such fixed commitment except for preference shares. So reasonable care should be exercised while deciding upon the capital structure. Suppose I am running a business, I am running a company. I need 100 crore rupees. So I have to finance. I have two source of finance. That is either I can issue shares or either you can issue or taking loan from banks or from debtors. So in this two finance source, there is two alternative option. Bank will charge fixed rate of interest, but the shareholders will get dividend. There are two types of shares we have, that is preference share and equity share. In preference shares, there is a preferential right, means suppose let's assume 12% preference shares. So the shareholders will take 12% fixed rate of interest. Either company is going in loss or anything, company interest will get given to the preference holder. But in the case of equity shareholders, the amount of dividend is not fixed. So you have two options, either you want to give fixed rate of interest or either you want to give normal. सपोज आपके पास बचा तो आप दोगे, नहीं तो नहीं दोगे, तो आप इक्विटी इशू करोगे. तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए पढ़ने वाले हो, दैट इज़ नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में आप ये सभी चीज़ें सीखने वाले हो. नेक्स्ट आता है डिविडेंड डिसीजन. इसके ऊपर भी एक चैप्टर है. तो आपको ये डिविडेंड डिसीजन क्या बोलता है कि आपके सपोज आपकी कंपनी है तो आपको डिविडेंड देना है या नहीं देना है. तो ये कैसे डिफाइन होता है, तो हम ऐसा केस लेते हैं. आपकी कंपनी ग्रोथ कर रही है और आपके शेयर्स में जो पैसे हैं ना, आपके शेयर्स ऊपर जाने वाले हैं. बट अगर आप डिविडेंड इशू करते हो तो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं ना, वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो उनको आपकी कंपनी से कम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, रिटर्न मिलने वाला है. तो शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे, आप जो डिविडेंड का पैसा है ना अपने पास रखो, इशू मत करो, ठीक है. बट अगर आपको मालूम है कि आपका बिजनेस का जो लेवल है वो मार्केट में नीचे आने वाला है, तो आप शेयर होल्डर्स को क्या बोलो कि मैं डिविडेंड रेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप जितना अर्न कर सकते हो मैं उतना अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, करेक्ट. तो
तो इस केस में कंपनी क्या करती है, डिविडेंड इशू करती है। तो डिविडेंड डिसीजन कैसा लेना है, देखिए डिविडेंड डिसीजन इज ऑफ द फर्म इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड एंड हाउ मच रिटेन टू फ्यूचर एक्सपांशन प्रोग्राम, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए और कितना रखना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इज टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, से मैंने बोला कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट वैल्यू को ऑफ इक्विटी को मैक्सिमाइज करना। तो ये सारी चीज़ें आपको अगले चैप्टर में पढ़नी है और ये था आपका ओवरऑल। फिर इसके फंक्शन क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, देखते हैं। The function of financial management involve acquiring fund for meeting short-term, long-term requirement of the firm, deployment of fund, control over use of fund, and trade-off between risk and return. There is a chapter risk and return. In the next video, I will make video on that topic. That is risk and return. So I'm going to cover the entire theory part of the sums as well as some practicals, which is possible to solve orally. Okay. Next, the modern approach of financial management is concerned with the solution of major problems like invest financing, dividend decisions. जैसे हमने ऊपर देख लिया इसका स्कोप थे ये सब। The function of financial management can broadly classified into three major: investment, financing and dividend. Investment में क्या था, where to invest and how much to invest. Financing में था from whom to we have to take finance, that is bank or equity, means we are having two types of sources, that is fixed rate of interest and one is dividend we have to issue. तो दोनों में से मुझे कौन लेना है, वो क्या था, आपका फाइनेंसिंग डिसीजन था। डिविडेंड डिसीजन मीन्स कंपनी वांट्स टू गिव डिविडेंड और नॉट एंड व्हाट अमाउंट इफ गिवन देन गिव। यहाँ पे आपके फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तो अब जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कब और कहाँ और कैसे करना है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। आपको हमें बनाना होता है कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजट बनाना होगा, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, आपको अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितना पैसा मिल सकता है, अभी उसका वैल्यू कितना है, ये निकलना होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये आपको यहाँ पे भी सीखना है। फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको तीन टर्म सीखने हैं: कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज। लेवरेज का मीनिंग होता है रिस्क। आपको रिस्क के बारे में सीखना है जो कि आपको सेकंड चैप्टर सिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको कितना इक्विटी कितना डेट रखना है, मीन्स के प्लस डी बोल सकते हैं, के प्लस डी। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है, आपको यहाँ पे के निकालना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे सीखनी है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपके लिए एक परफेक्ट चैप्टर बनाया हुआ है। तो आप वो पढ़ोगे इसके बाद तो आपको समझेगा, अदरवाइज खाली थ्योरी से आपको नहीं समझने वाला है। तो बट आपको सम्स करने के लिए सारी थ्योरी आनी चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड के लिए दो पॉलिसी होती है, या तो मैंने क्या बोला, आपकी कंपनी लॉस में जा रही है तो आप डिविडेंड पॉलिसी निकाल दोगे। फिर आपको अगर कितना बचा के रखना है, आपका क्या रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, द एक्सेस ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ क्या दिए हुए, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बी आस्क्ड इन द एग्जाम, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल नीड्स, मीन्स नीड्स हमें देखना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नीड्स क्या क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है उसकी आखिर। तो वन ऑफ द मोस्ट फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अनएडिक्वेट फाइनेंसिंग, मीन्स हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का फाइनेंस चाहिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो फाइनेंशियल नीड्स टू हैव टू बी असेस्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। मनी मे बी रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल प्रोमोशनल एक्सपेंसेस फिक्स, मीन्स आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिसके लिए आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। और ये क्या बताता है, डिटरमाइनिंग करता है फाइनेंशियल नीड्स, कि हमारा नीड्स क्या है, हमको बिजनेस रन करने के लिए क्या चाहिए। तो बिजनेस रन करने के लिए हम अगर बेसिक लेवल पे समझे तो हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, फिर हमें असेट्स चाहिए, फिर हमको बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी को रन करने के लिए क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर वर्किंग कैपिटल है मीन्स हमको क्या चाहिए, करंट असेट्स भी चाहिए, करंट लायबिलिटीज भी चाहिए। तो अगर आप देखते हो तो करंट असेट डिपेंड अपॉन साइज, आपको कितना चलाना है तो उसके ऊपर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है
डिटरमाइनिंग सोर्सेस ऑफ फंड मीन्स आप पैसे कहाँ से ले सकते हो, या कंपनी आपको खुद इशू कर रहे हो, और आइदर आप क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो, या तुम उसको क्या बोलेंगे, डेट बोलेंगे। तो फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू चूज द ऑप सोर्सेज ऑफ फंड। ही में डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी और डिवेंचर्स। सिक्योरिटी मीन्स खुद का कर सकता है तो लोन ले सकता है। ही में बोरो फ्रॉम अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देयर इज अ चैप्टर ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, वी विल डू दैट। The public, when the firm is new and small and little known the financial circle, the finance manager face a greater challenges from raising funds. So there is a small and little, so there is a chapter I've already discussed on that is AIF, alternative investment fund. I've made a video on that, you can go and watch. Okay, the finance manager faces a great challenge in raising funds even when he had choice of selecting sources of funds. Suppose I don't know you, so then how I can give you money or how I can give you fund? Suppose that is the face of that investment manager or finance manager. Okay, financial analysis. The finance manager has to interpret different statement। मीन्स हमें उस अगर एनालिसिस करना है तो उसको डिफरेंट प्रोस्पेक्टस है, कितने असेट्स है, कितने लाइबिलिटीज़ है, कितना प्रोडक्शन किया है, कितना सेल हुआ है, उसके ऊपर कितना परफॉर्मेंस है, कितना प्रॉफिट कर रहा है, तो इसके ऊपर हमें मेजर करना होता है। तो इसके लिए एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो आपको देखो पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टॉपिक का चैप्टर बना हुआ है, क्या है, रेशियो एनालिसिस। इसमें आप क्या चेक करते हो, लिक्विडिटी कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, और परफॉर्मेंस मेजर करते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, आप कितना स्ट्रक्चर इंश्योर मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो द रेशियो बिटवीन इक्विटी एंड अदर लायबिलिटी कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ चार्ज, मतलब आपको कितना देना है, फिक्स रेट। ये क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क बताता है। तो इसके ऊपर भी एक चैप्टर है आपको जिसका नाम है लेवरेज। ठीक है, तो लेवरेज के ऊपर चैप्टर है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें आपको रिस्क आइडेंटिफाई करेगा। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मीन्स कॉस्ट के कितना आप कॉस्ट अकर कर रहे हो कि आपको उतना प्रॉफिट हो रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो पॉइंट है प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रॉफिट प्लानिंग मीन्स आपको एस्टिमेटेड बेसिस पे प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट प्लानिंग करना है कि आपको इतना ग्रोथ चाहिए तो आपको कितना प्रॉफिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल इज अ डुअल फंक्शन विच एनेबल मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द कॉस्ट। आपने ग्रुप 1 में आप कॉस्टिंग में सीखे रहेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसमें हम एस्टिमेटेड बेसिस पे हम पढ़ते हैं मटेरियल कॉस्टिंग, मीन्स इतना मटेरियल लगने वाला है। सो दैट इज़ अ चैप्टर वी हैव टू नो द। उसमें था आपका एक तो पॉइंट था ब्रेक इवन पॉइंट, मीन्स हाउ मैनी यूनिट आई हैव टू सोल्ड टू गेट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। दैट इज़ द फॉर्मूला, हियर यू हैव टू अप्लाई दैट प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, फिर आपको टैक्स कितना भरना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो यू कैन राइट योर आंसर ओन बाय जस्ट viewing the topic and thinking on that, have a study or not. Definitely have a study all the points in previous group, that is group 1. Fixed assets management. तो fixed assets as financed by long term debts. Take finance manager has to ensure that these assets should yield to reasonable returns of proportionate to the investment. Means मैंने किस में कितना इन्वेस्ट किया उसके प्रोपोर्शन में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मैनेज करना होगा और मुझे प्रॉफिट देखना होगा। ठीक है, अब फिक्स असेट है तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। द असेट्स एक्सपोज टू चेंजेस इन द वैल्यू। सिंपल है ना भाई, आज जो फ़ोन मैंने मोबाइल फ़ोन 15,000 खरीदा है, कल वो 10,000 का रहेगा, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आफ्टर दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी द थर्ड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का थर्ड यूनिट। So definitely after risk and return I'm going to take that chapter, so be on my YouTube channel, definitely you will get more knowledgeable things. Capital budgeting. The capital budgeting forecast returns or proposed long term investment and compare profitability of different investment and the cost of capital.
सिंपली कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स क्या, मीन्स हाउ मच cost I have to occur for that investment. Okay, it is the result of capital expenditure investment. The various proposal assets ranked on the basis of criteria of urgency, liquidity, profitability and risks. इसके ऊपर भी आपको एक चैप्टर है, कैपिटल बजटिंग में आप पढ़ने वाले हो, उसमें आपको आएगा रैंकिंग, मीन्स आपको रैंक करना है एनपीवी के ऊपर, पीआई के ऊपर, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे आ जाएगा, तो लिक्विडिटी आपको रेशियो में आ गया है, रिस्क एंड रिटर्न आपको पढ़ना है अभी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपने जो पहले पढ़ा है उसको हम जस्ट थ्योरी पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो बिकॉज वी डोंट नो देन यू हैव टू नो ना, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग थ्योरी एंड थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. You can do sums but you don't know the why we are calculating that amount, that is not a good study, I think so. Corporate taxation. The corporate taxation is an important function of financial management. For the former of serious impact on the financial planning of a firm. Since the company is a separate legal entity, it is the subject to an income tax structure. As you have studied in Group 1, Companies Act 2013. So company is a legal artificial person. So company is a separate having a separate legal entity like human beings. Okay. तो कंपनी को भी टैक्स भरना पड़ता है. स्ट्रक्चर अप्लाई टू अ पर्सनल इनकम, जो भी कंपनी को अर्न करती है. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. सिंपली वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास होता है सी माइनस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है. तो फॉर्मूला में एक्सेस हो गया, माइनस क्या, तो एक्सेस किसके ऊपर, असेट के ऊपर, लाइबिलिटीज़ का. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया इन. अभी सिंपली समझते वर्किंग कैपिटल होता क्या है. तो वर्किंग कैपिटल बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है. तो वर्किंग कैपिटल नथिंग बट आर डे टू डे एक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट फंड्स, रिक्वायरमेंट असेट्स, रिक्वायरमेंट मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वर्किंग कैपिटल के पार्ट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डिविडेंड पॉलिसी. जैसे इसके ऊपर भी आपको एक चैप्टर है, जैसे मैंने बता दिया है. मर्जर एंड एक्विजिशन मीन्स मर्जर का मीनिंग क्या होता है, दो चीज़ें मिलके एक बन चुकी हैं. एक्विजिशन ने किसी को टेक ओवर कर लिया है. तो इस टॉपिक के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. मर्जर एंड एक्विजिशन का पर्टिकुलर मैंने फुल फ्लेज थ्योरी इस चैप्टर के ऊपर बनाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो. तो एक बार देख लेते हैं. मर्जर का मीनिंग वापस बताता हूँ. ए और बी दो कंपनी है, ठीक है, और दोनों सेम बिजनेस कर रहे हैं. वो ए और बी कंपनी चाहती है कि उनके बीच में कंपटीशन ना हो, मार्केट में और कंपटीशन ना हो, तो दोनों ए और बी कंपनी मिलके बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं मर्जर. बट एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, ए एंड बी दो कंपनी है, ठीक है. ए हाई ग्रोथ कंपनी है, अभी दोनों सेम लेवल पे हैं, बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बी कंपनी क्या होने लगी, लॉस में जाने लगी. तो ए कंपनी ने बी कंपनी को क्या किया, खरीद लिया. एक्विजिशन मतलब खरीद लिया मीन्स टेक ओवर कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं. ये डिफरेंट कारण से हो सकता है, या तो उस कंपनी के पास पैसे नहीं रहेंगे, या तो उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो ये था आपका मर्जर एंड एक्विजिशन. फिर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल. आप अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द लीडिंग गोल ऑफ ऑल द फर्म्स एज इट इज़ रिफ्लेक्टेड एज इनकम स्टेटमेंट. प्रॉफिट आपको कहाँ दिखता है, इनकम स्टेटमेंट में दिखता है ना, तो वही इनकम स्टेटमेंट. इफ़ द नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट टेंड टू इंक्रीज कंसिक्वेंटली द फर्म पोर्ट्रेज एफिशिएंट परफॉर्मेंस. मीन्स आपको अगर आपका प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है तो आपकी फर्म ग्रोथ कर रही है, अच्छे से चल रही है. अगर डिक्रीज हुआ तो आपके फाइनेंशियल क्या है, पुअर है, मतलब बहुत बेकार है. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और ऑप्टिमल इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव. मीन्स आपको मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मीन्स क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, करेक्ट. ओके, तो प्रॉफिट होना चाहिए एंड सॉ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क, एंड रिस्क को हमें कवर करते हुए चलना है. यानी कि प्रॉफिट के चक्कर में रिस्क उड़ा दिया और रिस्क के कारण हमारा बिजनेस ठप हो गया, मीन्स बल्ले बल्ले हो गए बिजनेस के. आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब इसके पीछे हम क्या देख सकते हैं, तो व्हेन प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन एम, हमारा प्रॉफिट का मेन एम हो सकता है. फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें जानना पड़ता है, हमें ऐसा मान के चलता है कि फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है, तो हमें ऐसे काम करने हैं कि हमें फ्यूचर में जाके कोई दिक्कत ना हो.
हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसका ग्रोथ करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जस्टिफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ रेशनली, मीन्स ये नहीं कि हवा में बोल दिया, ऐसा बोलो कि वो चीज़ें हो जाएं। तो ये क्या था, उसके फेवर में था, बट उसके अगेंस्ट क्या क्या देखना है वो देखो। इट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर एंड कंज्यूमर। हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो वर्कर को हम क्या बोलेंगे, भाई ज़्यादा काम कर, बोलेंगे ना, तो उनका क्या होगा, एक्सप्लॉइट होगा, मीन्स उनका हक हम कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं। इग्नोर द रिस्क, अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट देखेंगे तो हमें रिस्क को तो इग्नोर करना ही पड़ सकता है, और रिस्क नहीं तो इश्क नहीं है, करेक्ट। और रिस्क के चक्कर में इश्क नहीं है तो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा। फिर अब सपोज आप ये सोच रहे हो कि मार्केट में पैसा लगाऊंगा तो पैसे डूब जाएंगे, तो भाई ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है या तो ज़्यादा लॉस हो सकता है। बट आप सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पैसे नहीं डूबेंगे, तो आपके पास चांस कम है कि आपने रिस्क कम उठाया तो आपको प्रॉफिट कम हो सकता है। जैसे मार्केट में एक ऑप्शन होता है F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेक्ट। तो उसमें आपको पैसे बन भी जाते हैं, पैसे चले भी जाते हैं, तो हाई रिस्क है तो ही हाई रिटर्न है। प्रॉफिट इज इन इट सेल्फ इज अ वेग concept, means different from different people, means I'm thinking some different concept, you are thinking different. I'm thinking the market will go up and you are thinking market will go down, so depending upon the person there is a different concepts. It is a narrow concept, a concept of cost of social and moral obligation, means दूसरे को बातों पर उतना भरोसा करता ही नहीं है, खुद का कैलकुलेट करेगा, खुद बताएगा, ठीक है। तो ये सारे थे इसके अगेंस्ट में फेवर। Wealth maximization means simplify increasing shareholder value over time is the bottom line of every move or we make, ठीक है। सिंपली आपको कहाँ से पैसे चाहिए वो देखो, आप बस आपको किससे लोन लेने का है, किसको आपको शेयर्स इशू करने हैं, तो वो क्या आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड इनटू करंट मार्केट प्राइस, ये आपका क्या है, करंट का हो जाएगा। इसके अब फेवर आर्गुमेंट क्या है फेवर में देखो, ड्यू टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन द शॉर्ट टर्म मनी लेंडर्स गेट देयर पेमेंट इन टाइम, मीन्स जो भी छोटे मोटे अमाउंट को हम पेमेंट करके हटा देंगे, करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म लेंडर्स को थोड़ा अगर प्रॉफिट करेगी अपनी कंपनी तो उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलते रहेगा। एम्प्लॉय ऑफ शेयर्स गेट इंक्रीज, मीन्स जो हमारा EPS है EPS भी इंक्रीज होता है, हमारा कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। वेरियस रिसोर्सेज आर पुल्ड टू बी इकोनॉमिकल एंड डिफरेंट इफिशिएंट यूज, मीन्स हमारा पैसे ज़्यादा है तो मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाएगा, मैनेजमेंट ज़्यादा है तो कंपनी अच्छी चलेगी मीन्स हमारा सब कुछ अच्छे से मैनेज होने वाला है। सिंपली मीन्स लॉस कंपनी का कोई अच्छे से मैनेज होता नहीं है, इसलिए वो लॉस में चली जाती है। फिर आर्ग्यूमेंट उसके अगेंस्ट में है, तो सोशली अनडिजायरेबल, मीन्स सबको तो हो नहीं सकता है ना भाई, मैं बोलूँगा प्रॉफिट तुम बोलोगे लॉस। नॉट अ डिस्क्रिप्टिव ऑफ डेटा, ये डेटा के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ओनली स्टॉक होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डज नॉट लीड्स टू हिम फॉल टू फॉर्म वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। खाली स्टॉक होल्डर्स को नहीं देखते हम, इधर शॉर्ट टर्म वाले को भी देखते हैं, लॉन्ग टर्म वाले को भी देखते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज एंड्रेज व्हेन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेटेड, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग करके हम मैनेजमेंट डिवाइड करके ही करते हैं, अदरवाइज साथ में रहेंगे तो घोटाला कर सकते हैं। तो विल कवर ओनली मेन पॉइंट्स, ठीक है। आई थिंक चैप्टर इज गोइंग टू ओवर, यस। नाउ आई हैव completed the entire 1.1 chapter, that is introduction to financial management. So in this video I have discussed many things, just have to go through on that. करेक्ट, या सो हमने इस चैप्टर में क्या देखा, डिस्क्राइब फाइनेंशियल मैनेजमेंट टर्म इन 3 मेजर डिसीजन, दैट इज फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। एरिया ऑफ हमने कहाँ देखा, कहाँ पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव थे, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो यू हैव टू रिमेंबर आंसर इन दैट वे, ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।